Good morning, my dear students. How are you all? I hope all are fit and fine. Dear students, today we will read lesson number 6 in our SST book. The name of the chapter is Delhi. All you know this name, Delhi. Dear student, Delhi is the capital of India. Capital of India. In this chapter, we will read about the history of Delhi and main features and tourist attractions in the city. Dear students, firstly we will read about the capital. Delhi has been ruled by many kings and it was ruled by the Chauhan, Delhi Sultan, Mughals and the British. काफ़ी सारे किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है, शासन किया है, जैसे कि चौहान, दिल्ली सुल्तान, मुग़ल एंड ब्रिटिश. शाहजहाँ, the Mughal emperor made Delhi his capital and called it Shahjahanabad. शाहजहाँ एक ये मुग़ल एम्पेरियर था, इसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और उसका नाम क्या रखा था? शाहजहानाबाद. दिस एरिया इज़ नाउ कॉल्ड ओल्ड दिल्ली. अब इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड दिल्ली. Good to know that it is believed that Delhi was first built by the Pandavas and it was called Indraprastha then. Yes, dear students, according to the old Indian history, that in the ancient time the Delhi was the capital of Pandavas and that time it was called Indraprastha. Indraprastha means the city of God. Then the British made Delhi their capital in 1911. In 1911 में ब्रिटिश एम्पेरियर ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. सर एडविन लुटियंस हैड डिज़ाइन मैनी ऑफ द बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली. Yes, dear students, Sir Edwin Lutyens. He was an architect. Sir Edwin Lutyens was an architect and has designed many of the buildings in the New Delhi. Today, Delhi is known as the National Capital Region. The short form of National Capital Region is NCR, and which include neighboring cities such as Gurugram, Noida, Faridabad, Ghaziabad and other. Now, today, आज दिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, और जिसके अंदर इसकी जो नेबरिंग सिटीज़ हैं जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद को भी इंक्लूड किया गया है NCR के अंदर ही. Delhi is located in northern India and it is bordered by Haryana on 3 sides and Uttar Pradesh in the east. Yes, dear students, according to the sketch of Delhi map, that Delhi is located in northern India and it is bordered by Haryana on 3 sides. 3 साइड हरियाणा दिल्ली के साइड्स में आता है एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट, एंड ईस्ट साइड में क्या है? उत्तर प्रदेश. एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यहाँ से कौन सी नदी फ्लो करती है डियर? यमुना. देन गियर अप. Why did the British shift their capital from Calcutta to Delhi in 1911? Dear student, Delhi was officially announced as the capital of British Raj by the then Emperor George V on December 12, 1911. And the capital was shifted from Calcutta as Delhi was the financial and political seat of many earlier emperors
and was located closer to the geographical center of India. That's why British shifted their capital from Calcutta to Delhi in 1911. Now, time to think. What are the advantages of living in the capital city? Dear students, there are often roads of a better quality and well-built houses in urban areas. Transport facilities are highly developed and often receive regular funding from updates. It can be faster to get from place to place in a city or town. Next, we will discuss about the climate of Delhi. Dear student, Delhi has an extremely climate. It is very hot during summers and very cold during winter. It receives rainfall during the rainy season. In summer, a very hot and dry wind called the Loo blow over the city. जो दिल्ली की क्लाइमेट है काफ़ी एक्सट्रीमली अच्छी क्लाइमेट है. इट इज़ वेरी हॉट. समर सीज़न में काफ़ी हॉट होता है और कोल्ड सीज़न में काफ़ी कोल्ड. रेनी सीज़न के अंदर अच्छी बारिश भी होती है और समर सीज़न के अंदर बेटा काफ़ी ड्राई हॉट विंड चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट in New Delhi. Just as the principal is the head of the school and is in charge of running the school, every country has a head, and in India the president is the head of the country. My dear student, like as a school principal, he is the head of the school. स्कूल को चलाने वाला हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है. ऐसे ही हर कंट्री का एक हेड होता है और जो हमारी इंडिया कंट्री का हेड है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं. And the main offices of the government of India are located in New Delhi. Main offices Indian government are located in New Delhi, and the President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में. द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिस इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. प्राइम मिनिस्टर्स और इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं हमारे अदर्स, उनके ऑफिस भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर ही हैं. द पार्लियामेंट हाउस एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर आल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. पार्लियामेंट हाउस एंड सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर. गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो हैव देयर ऑफिसेज कॉल्ड एम्बेसीज और हाई कमीशंस इन न्यू दिल्ली. गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़ एंड देयर ऑफिसेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्बेसीज बोलते हैं, एंड हाई कमीशंस आल्सो कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली के अंदर. एवरी सिटी हैज़ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. हर सिटी का अपना एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ न्यू दिल्ली लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ रोड, सेवरेज, क्लीनिनेस एंड गार्बेज डिस्पोजल. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है वो किसकी मेंटेनेंस को देखता है, रोड मेंटेनेंस को देखता है, सीवरेज क्लीनिनेस को देखता है और गार्बेज को डिस्पोज कैसे किया जाता है, ये सारा डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली करता है बेटा. नाउ नेक्स्ट ईयर इट इज़ द पिक्चर्स ऑफ आवर राष्ट्रपति भवन. कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेस? यस, it is the pictures of Rashtrapati Bhavan. And why is this place important? ये place हमारे लिए क्यों important है? Tell me. Rashtrapati Bhavan, home of the president of the world's largest democracy, epitomizes India's strength, its democratic tradition and secular character. When constructed, it was called the Viceroy House. स्टार्टिंग में जब राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था तो उसका नाम क्या था, वॉइसरॉय हाउस. एंड द नेम चेंज टू गवर्नमेंट हाउस ऑन अगस्त 15, 1947. और 15 अगस्त 1947 को इसका नेम बदलकर क्या रख दिया गया, राष्ट्रपति भवन. नेक्स्ट ईयर वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट. दिल्ली हैज़ सम इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस. दिल्ली के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है. सम ऑफ देम आर
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इनमें से ये कुछ फेमस रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। एंड द दिल्ली मेट्रो हैज़ कनेक्टेड ऑल मेजर एरियाज विद इन द सिटी। कुछ ही टाइम के अंदर जो दिल्ली मेट्रो है वो मेजर जो एरियाज़ है दिल्ली के अंदर उनके साथ कनेक्टेड हो चुका है। एंड इट कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर एवरी डे। इनमें थाउजेंड्स पीपल ट्रैवल करते हैं पर डे। दैन द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बिजी एयरपोर्ट के अंदर नेम किसका आता है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एंड इट हैंडल बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। और ये दोनों टाइप की फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, दोनों ही टाइप्स की फ़्लाइट्स को हैंडल करता है। यस, दिल्ली हैज़ ब्रॉड रोड, काफ़ी ब्रॉड रोड है दिल्ली के अंदर, विच आर लाइन विद ट्रीज, काफ़ी सारे ट्रीज भी लगे हुए हैं। अ नंबर ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन मेड टू अलाउ ईजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक को ईजिली मेंटेन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाई ओवर भी बनाए गए हैं। Then dear students, time to think. Rashtrapati Bhavan has beautiful garden which are open to public once a year. What are these garden called and in which month can we visit them? राष्ट्रपति भवन में क्या है? काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है और जिनको ओपन किया जाता है वंस अ ईयर, एक साल में एक बार पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। कब ओपन किया जाता है? विजिटिंग डेज ऑफ राष्ट्रपति भवन गार्डन आर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. Only during the month from August to March you visited Rashtrapati Bhavan. Next we will talk about the monuments. Delhi is a home to many historical monuments. These are protected by the Archaeological Survey of India. Some of the monuments are Jama Masjid, Red Fort, Qutub Minar, Humayun Tomb, Purana Qila, Safdarjung Tomb and Jantar Mantar. काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे कि यहाँ पे नेम बताए गए हैं आपको, जमा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, पुराना किला, सफदरजंग टॉम एंड जंतर मंतर. एंड इट इज़ द पिक्चर ऑफ लोटस टेम्पल. लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन. अपने डिज़ाइन की वजह से ये काफ़ी फेमस है, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम. Then India Gate is the another tourist attraction. Amar Jawan Jyoti at India Gate burn continuously in the memory of soldier who gave up their life for the country. India Gate भी सेकेंड अट्रैक्शन है हमारा इंडिया दिल्ली का. दैन अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के ऊपर ही कंटिन्यूसली बर्न करती रहती है. किस लिए बर्न करती है? जिन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को कंट्री के लिए डोनेट कर दिया है उनकी याद में जो अमर जवान ज्योति है बेटा वो कंटिन्यूसली बर्न करती रहती है. एंड द समाधि ऑफ महात्मा गांधी इज़ इन राजघाट. महात्मा गांधी की समाधि है वो कहाँ पे है? राजघाट में. एंड इट इज़ ऑफ्टन विजिटेड बाय द मिनिस्टर एंड फॉरेन विजिटर. और मोस्टली मिनिस्टर्स एंड फॉरेन विजिटर यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर जाते हैं. Next we will talking about the culture of Delhi. People from the all of the states of India live in Delhi. Mostly states के लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं. Thus most of the major festival are celebrated here such as Holi, Eid, Christmas, Diwali, Lohri, Baisakhi and Pongal. अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर रहते हैं इसलिए जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं वो सब के सब दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं. दिल्ली हैज़ अ नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल. यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेस ऑफ वर्शिप भी है पूजा करने के लिए, जैसे कि बांग्ला साहिब गुरुद्वारा हो गया, बिरला मंदिर है, जामा मस्जिद है और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल भी है. Then Delhi is also an important center of learning. There are a number of universities, schools, colleges which provide quality education to students. Some of the well-known colleges and universities are Jawaharlal Nehru University, Delhi University,
Jamia Millia Ismailia University, and children can visit places like Bal Bhavan, Doll Museum, Craft Museum, and Rail Museum to know more about India and its culture. Many exhibitions and fairs are held every year. Some of them are the India International Trade Fair, Book Fair, and Dustacl. There are many eating places in Delhi with a wide variety of cuisines food, all from over the world. The street food in Delhi is also very popular. Street food भी जो दिल्ली के अंदर काफ़ी popular है. The Pranthe Wali Gali in Old Delhi has been there for over 100 years. दिल्ली ओल्ड दिल्ली के अंदर प्रांठे वाली गली एक फेमस फूड स्ट्रीट है जो नियर अबाउट 100 ईयर्स से ही स्टार्ट की हुई है, चालू है. पीपल इन दिल्ली वियर बोथ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशन क्लोथ्स. दिल्ली के अंदर लोग दोनों ही टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, वेस्टर्न और ट्रेडिशन. Next we will discuss about the sports and the entertainment. Delhi is the second most populous city in the India. It has world class sports facility and with big stadium. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, काफ़ी बड़े बड़े स्टेडियम के साथ में, कार रेसिंग ट्रैक्स, इंडोर स्विमिंग पूल्स एंड मच मोर. यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी? बिग स्टेडियम, कार रेसिंग ट्रैक्स एंड इंडोर स्विमिंग पूल्स. The first and the ninth Asian game were held here. जो एशियन गेम थे फर्स्ट एंड द नाइन्थ दिल्ली के अंदर ही हुए थे इन 2010 के अंदर. द कॉमनवेल्थ गेम्स वर आल्सो हेल्ड इन दिल्ली. इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होस्टेड बाय द इंडिया. सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट था जो कि इंडिया ने होस्ट किया था. एंड चांदनी चौक, दिल्ली हाट, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, कमला नगर आर सम ऑफ द पॉपुलर मार्केट फॉर शॉपिंग्स. कौन कौन से शॉपिंग के लिए पॉपुलर मार्केट? चांदनी चौक, दिल्ली हाट, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर एंड कमला नगर. एंड दिल्ली also has many malls which sells both national and international goods. दिल्ली में काफ़ी सारे मॉल्स भी है जहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपको मिलेंगी. मॉल्स आर बिग एयर कंडीशनर मार्केट विद आर नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग अ वैरायटी ऑफ आइटम. और मॉल्स के अंदर काफ़ी एयर कंडीशंस मार्केट है जहाँ से आप कोई भी वैरायटी का आइटम खरीद सकते हैं. So my dear students, now our chapter is finished. In this full chapter we will read about the Delhi, and the New Delhi is the capital of India. Delhi is known as the national capital region, like the short form of national capital region is NCR, and which include neighboring cities such as Gurugram, Noida, Faridabad, Ghaziabad. And Delhi has an extreme climate. Summer are hot and winter are very cold. And the Municipal Corporation of Delhi (MCD) look after the maintenance of roads, sewerage, cleanliness and garbage disposal. And Delhi is the most second populous city in India. People from different states live there. My dear students, read this lesson carefully. Thank you, dear student.